कोई एवरीवन। सो आफ्टर गिविंग गेट एग्जामिनेशन, सो मेरा IISc से कॉल आया था इंटरव्यू के लिए फॉर गेटिंग मास्टर्स डिग्री। तो मैंने सोचा था कि जब मैं IISc जाऊँगा तो मैं एक ब्लॉग बनाऊँगा एंड आई ट्राई टू मेक दैट ब्लॉग, जो कि आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। बट दैट ब्लॉग इज़ अनफिनिश्ड एंड वाई सो, टू फाइंड आउट कीप वॉचिंग द वीडियो। Koichi everyone. So I got a interview call from IISc for MTech in Mechanical Engineering and Product Design. So in this video I am going to share my journey. It's kind of a blog, but I never made any blog. So let's see how it goes. So now it's 5 p.m. After 1 hour I have train to Kolkata, from where I will catch my flight, and tomorrow I'll land to Bangalore. So let's see. So basically I live in Jalpaiguri. So in my hometown there is no big airport or something like that. So I book my plane ticket from Kolkata to Bengaluru. So today I have my train to Kolkata around at 6 p.m. It's almost 5 p.m. So after 1 hour I will pick up my train, and then I will catch the flight next day, and then yeah, I will go to Bengaluru. So let's see the journey. So I just reached to the station. So let's wait for 20 minutes and then the train will arrive, and then I will shoot. So finally I reached to Kolkata. I didn't shoot any video in train because I was in general compartment, and as you know, Indian Railways, the general compartment is always crowded and I am not comfortable with so much crowd. And as because IISc just sent 3 weeks ago our interview date, so I could not get the reservation, hashtag Indian Railways. So yeah, now I am near the airport, so let's get inside. And it's my first flight, so I don't know actually what's the procedure. Although my flight is around 12:15 and it's currently 7:30, I am just coming here to just view the airport because I never seen it. So let's see. So there are only cars. I saw just only one two-wheeler. Yeah, that's it. And also, like, if someone wants to come by Rapido or something like two-wheeler app-based, I mean the two-wheelers which are in app-based, and they put the signboard that the two-wheelers which are based on any apps are not allowed in airport. So yeah, if anyone comes here first sight, so try to recognize it. So the breakfast is done and now I am moving towards the airport. Meanwhile, as it's my first flight, so I don't know much about the procedure. So I talked to a friend and he told me that you can just directly book your boarding pass from online. You have to just install an app called Digi Yatra, by which you can download your, or you can access your what they say, boat pass. So you don't have to be in the queue. Okay. And well, I did it. So what I have done is I have to just go to the airport and just complete the security case or whatever that they are gonna check everything, like in my bag, whatever in my bag, or like electronic goods, and that's it. Okay, I don't have to be in the queue for getting boarding pass. So I feel that if you also never been in aeroplanes, then this information might help you. So let's go. So currently I am in the airport, so I don't know where to go. Okay, let's just search. So the security check is done. Now let's wait for boarding time. So I guess that's our flight, the Air India Express, although I am not sure, but yeah, let's see. So currently I am the QE. Okay, so let's see the first flight, how it goes. So it's feel like Squid Game, like at the end of season 1, the protagonist just go to the plane, but he don't take at the plane and come back for the revenge. It seems like that. Okay, so let's go. So it's our flight.
So we are in the plane and I got the window seat because I booked the window seat. So you can see the horizons. Okay, so let's shoot some videos when it will fly. So it's the Eden Garden. Oh, so nice. Just looking like a wow. Okay, I guess we are going up, so sooner we will cross the troposphere, and after that we can't see this because it's almost, kind of getting foggy. Yeah, let's click some pictures. Oh, so I guess we are landing. Yes, we are. Yes. Oh, we finally will land. Oh, see, the wing just opened, so it adverts the flow and deaccelerate the plane. Oh. Finally landed to Bengaluru. So we just arrived at airport and see whom I find. Hello guys. It's all India rank 5 Sattaki in mechanical. Okay, so let's go out. So welcome to Bengaluru. Hello buddy. So much greenery here. Well, seems like I am lost in airport, but eventually one of my friend also going for IS interview, so he landed just 15 minutes ago. So I called him to book a cab, and actually I am in terminal 2 and he is in terminal 1. And for those who are or who will gonna get any flight or come to Bengaluru, then you have to understand that this airport is so big. So I literally, because it's my first flight and also first time I am coming to Bengaluru and this kind of airport, so it's all fuzzy, like where to which is the exit. There are a lot of exits and everything is like car parking or Uber parking, like not a straight exit like from where I can go out and normal like city. I don't know how to explain this, but yeah, I am facing some problem. So if you are traveling first time, then I will suggest you that you always do research, or you can check the Google Maps like where should be the exit. I didn't do it. And also if you book cab, then book it before you come before your exit, so that you can easily can got out from the airport. So yeah. सो या इट इज़ द अनफिनिश ब्लॉग. तो ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज मेरा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था. वेल, जैसे कि आपने देखा, तो उसके बाद मैं जब रूम में घुसने वाला था इंटरव्यू के लिए, तो मैं आई वॉज द थर्ड पर्सन whom they will call. ओके, तो मेरे पहले 2 बंदे थे जिनका इंटरव्यू होने वाला था. अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा इंटरव्यू था दोपहर के टाइम पे, एंड अब दोपहर के टाइम पे उन्होंने बोला कि किसने लंच नहीं किया है. तो मैंने लंच नहीं किया था, तो मैंने उनको बोल दिया कि सर मैंने तो लंच नहीं किया. तो बोले अच्छा आपने लंच नहीं किया, ओके एक काम कीजिए, आप पहले इंटरव्यू दे दीजिए, तो उसके बाद आप लंच करने चले जाइएगा. अब यहाँ पर मैं फंस गया, क्योंकि ये सुनकर ही मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लूज़ हो गया और मैं काफ़ी पैनिक करने लगा, क्योंकि पहली बार मैं इंटरव्यू देने वाला हूँ. आसपास भी जो लोग थे उनका भी पहली बार था, तो
तो इसकी वजह से कोई भी ये नहीं जानता था कि इंटरव्यू कैसे मतलब चलता है, क्या उनका प्रोसीड्यूर रहता है। हालांकि उन्होंने बोल दिया था कि वो लोग बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो जब मैं घुसा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप बता दीजिए। तो मैंने उनको बताया कि सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है, लाइक बेसिक थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिकल का एक बेसिक सा सब्जेक्ट है। तो बोले आपने यहाँ पर कौन से चैप्टर्स मतलब आपने पढ़ाई करके आए। तो मैंने उनको बोला सर मैंने सारे ही पढ़ा है, लाइक बेसिक थर्मोडायनामिक्स मैंने सारे चैप्टर्स ही पढ़े। तो उनके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन था आसान, क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा आसान। अगर आप में से कोई 11-12 में तो भी शायद आपको ये आंसर पता होगा कि यूनिवर्स का एंट्रोपी क्या होता है, लाइक कांस्टेंट रहता है या फिर ऑलवेज इंक्रीज होता है। तो मैंने गलती से यहाँ पर बोल दिया कि सर ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी। और जब आप गलती करते तो ये नहीं बोलते कि अरे आपने तो गलती कर दी, वो बोलते अच्छा ऐसा है तो आप इसको प्रूव करके दिखाओ। तो मैं तो भाई प्रूव करने लग गया और प्रूव ही नहीं हो रहा है। अरे प्रूफ होगा कैसे, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ही गलत था। तो उसके बाद 4-5 मिनट बाद मेरे को याद आया अरे भाई मैंने तो गलती कर दी। उसके बाद मैंने माफ़ी मांगी और जो करेक्ट था वो मैंने उनको बताया। उसके बाद लोग एक सेकंड क्वेश्चन में चले गए। जब सेकंड क्वेश्चन गेट का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो ये तो मुझे आता था, तो मैंने तो मान लिया था ये तो मैं बता ही दूंगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन मैंने जब बताया तो वो लोग बोलने लगे कि ये आपका आंसर नहीं ऐसा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो लोग बोलने लगे कि ये आंसर नहीं होगा, आप किसी और तरीके से बताइए। अब आंसर वही है, मतलब गेट में वो क्वेश्चन में लगभग 50 बार कर चुका हूँ, लेकिन वो लोग मानना ही नहीं चाहते कि ये आंसर होगा। तो उसका मुझे रीज़न नहीं पता। और इंटरव्यू बस 10 मिनट ही मेरा चला, और इन जनरल 10 मिनट ही चलता है। 10 मिनट ही वो लोग आपको जज कर लेंगे कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो इंटरव्यू जब 10 मिनट बाद ख़त्म हुआ तो मेरे को पता चल गया था कि वो लोग मुझे लेने नहीं वाले थे, क्योंकि IISc का ऐसा ही होता है, आपका गेट रैंक कितना भी अच्छा हो। हालांकि मेरा उतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन अगर आपका रैंक 1-2 भी हो लेकिन अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं चलेगा तो आपका नहीं होगा। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका रैंक था 18, ओके, ऑल इंडिया रैंक था 18, लेकिन उसका भी सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू ख़राब हो गया, तो उसको भी जैसे ऑफर लेटर नहीं आया। तो उसके बाद मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया, मतलब काफ़ी बुरा लगा था मुझे, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी आसान थे, फिर भी मेरे से नहीं हुआ। तो इसलिए मैं उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो भी शूट नहीं की। एंड नेक्स्ट दिन मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन का इंटरव्यू था। प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए मैं कुछ पढ़ाई भी नहीं की थी। मेरे को लगा अरे मैकेनिकली मेरे को आ जाएगा, मैं कर ही लूँगा मैकेनिकल इंटरव्यू क्रैक। एंड लकीली मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन का इंटरव्यू निकल गया। मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन में वो लोग जो पूछे थे, बाय गॉड, लाइक मेरे से पूछ रहे कि आपके घर में आपने मिक्सर ग्राइंडर देखा है। मैंने बोला हाँ सर देखा है। तो बोल रहे कि अगर ये ख़राब हो गया तो आप कैसे ठीक करोगे। मैंने बोला सर ऐसे ऐसे ठीक करूँगा। उसके बाद बोल रहे कि आपके घर में कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। दो प्रोफेसर थे, बट एक प्रोफेसर ही मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। वो लाइक उनको देख के मुझे ऐसे वो 3 इडियट्स में जो वायरस था उसका फील आ रहा था। लाइक ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन एट द एंड लाइक 70 to 80% आई कैन आंसर। और मेरे डिपार्टमेंट से क्वेश्चन शायद 1 ही 2 थे, बाकी सब वो लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछ रहे थे। तो हालांकि वो इंटरव्यू देके मैं सेटिस्फाइड हुआ था, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत तो चांसेस है। हालांकि श्योर नहीं था, क्योंकि मैकेनिकल का ऑलरेडी ख़राब हो चुका था। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आया 2 हफ्ते बाद, तो मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन में हो गया था। तो मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन में हो गया था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि प्रोडक्ट डिज़ाइन में मैं लाइक एडमिशन लूँ या ना लूँ। लेकिन उसके बाद मेरा बाग का इंटरव्यू था, और एक EIL मतलब एक PSUI इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, उसका भी इंटरव्यू था। अब EIL का भी इंटरव्यू मेरा लगभग अच्छा ही हुआ था, तो मेरे को लगा था कि EIL में भी हो जाएगा। और बार का इंटरव्यू तो मैं ऑलरेडी बोल ही चुका हूँ कि मेरा चला ही था 1 घंटे 40 मिनट। तो मेरे को लग रहा था कि बार या फिर EIL किसी ना किसी में तो हो ही जाएगा। तो इसलिए मैंने एडमिशन मतलब नहीं लिया IISc में, एंड लकीली आई गॉट BRC। तो मैं इसलिए मैंने एडमिशन नहीं लिया। लेकिन हाँ, मेरा इंटरव्यू क्रैक हो चुका था। अगर मेरा जो इंटरव्यू लेटर वो मैं लिंक्डइन में शेयर भी किया था। तो यह ऐसा ही था मेरा IISc का ब्लॉग, और आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस। हालांकि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और आप जानना चाहते हैं कि स्पेसिफिकली क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे आप IISc के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन ले सकते हो, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत सबके लिए ही बनाना चाहता था, इसलिए मैं टेक्निकल क्वेश्चन में नहीं घुसा। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एंड या दैट वाज इन दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।